بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ گزشتہ ہفتے میں نے یہ بیان کیا تھا کہ کس طرح ایک بیوی اپنے شوہر کو خوش کر سکتی ہے۔ اس میں نے کافی ٹپس بتائے تھے، کافی چیزیں بتائی تھیں کہ جس کے ذریعے سے ایک بیوی اپنے شوہر کو خوش کر سکتی ہے۔ اس میں بہت زیادہ بہنوں نے یہ شکوہ اور شکایت بھی کی کہ آپ نے شوہر کو خوش کرنے کا طریقہ تو بتا دیا ہے، اور آپ شوہروں کے لیے بھی آپ ایک ضرور بتائیں کہ کس طرح شوہر شریعت کے مطابق اپنی بیوی کو خوش کر سکتے ہیں۔ بیوی اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں ایک ساتھی ہم سفر کی کمی محسوس ہوئی تو اللہ پاک نے انعام کے طور پر اماں حوا کو تخلیق کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک مرد کی زندگی عورت کی زندگی کے بغیر ادھوری ہے۔ بیوی اپنے گھر بار، بہن بھائی، سہیلیوں اور بہت سے عزیز رشتہ داروں کو چھوڑ کر ایک پرائے دیس، پرائے گھر آتی ہے۔ اس کو کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے ماحول کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکے۔ شروع کے چند سال بہت اہم ہوتے ہیں۔ جو مرد ابتدائی چند سال سمجھداری سے گزارتے ہیں، ان کی شریک حیات ہمیشہ ان کے ساتھ خوش اور مطمئن رہتی ہے۔ بیوی کے لیے شوہر کی بہت اہمیت ہے۔ شوہر اگر چپ چاپ طبیعت کا بھی ہو تو اسے اپنی عادت کے مطابق شادی کے بعد اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے، روکھا مزاج چھوڑ دینا چاہیے، بیوی سے مختلف موضوعات پر خوبصورت گفتگو کو اپنا معمول کا حصہ بنانا چاہیے۔ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ مرد صرف اہم باتیں ہی کرتے ہیں، باقی وقت وہ اپنی زندگی میں مگن رہتے ہیں، ٹیکنالوجی میں مگن رہتے ہیں، موبائل میں اور انٹرنیٹ پر مگن رہتے ہیں، مگر بیوی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ احسن انداز سے بیوی کے خرچ کا بندوبست کریں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کو ٹائم دیں۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف جنسی تسکین کا رشتہ نہیں ہے، یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں، بلکہ ضروریات اور ذمہ داری اور آپس کے احساسات کا رشتہ بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ امہات کو خوش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پکاتے، ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتے، دوڑ لگاتے، بلکہ ہلکا پھلکا مزاح بھی کرتے۔ بیوی کو خوش رکھنے والا ہی کامیاب مرد کہلاتا ہے۔ آپ بیوی کو خوش رکھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی تعریف کریں، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ عورت دنیا کی واحد مخلوق ہے جس کو
चाहे झूठी तारीफ करो या सच्ची करो, वो फौरन खुश हो जाती है। और यही औरत की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वो अपनी तारीफ सुनकर सब कुछ भूल जाती है। इसलिए शादी के बाद एक खुशगवार जिंदगी गुजारने का सबसे पहला फार्मूला ये है कि अपनी बीवी की तारीफ करते रहें। तारीफ करने के कुछ तरीके ऐसे भी हो सकते हैं कि हफ्ते में कम अज कम उसके हाथ से बने हुए खाने की तारीफ जरूर करें। चाहे खाना कितना ही बदमजा क्यों ना हो, उसका फायदा ये होगा कि अगली दफा वो खाना अच्छे से तैयार होगा। महीने में कभी कभार उसकी अदाओं की तारीफ करें। कभी कोई लड़की चाहे कैसी भी हो, उसमें कोई ना कोई ऐसी जरूर होती है जिससे वो अलग और मुनफरिद लगे, उसकी उस अदा की तारीफ कर दें। महीने में कम से कम 3-4 बार उसकी ड्रेसिंग की तारीफ करें। इससे वो हमेशा बनी तनी रहेगी आपके सामने। ये तो सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत सईदिना आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की तारीफ किया करते थे। आपस में अंडरस्टैंडिंग रखें, क्योंकि शादी के बाद बाकी सारी जिंदगी आपने अपनी वाइफ के साथ गुजारनी है। इसलिए आपस में आप जरूर अंडरस्टैंडिंग रखें। आपस में जितनी आप अंडरस्टैंडिंग रखेंगे वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि याद रखें कि आपके जज्बात, आप औरत के जज्बात को समझेंगे। औरत अपने ऊपर चाहे जितनी सख्त क्यों न हो, अंदर से दिल से इतनी ही नरम होती है। आपस में अंडरस्टैंडिंग रखने से एक दूसरे को समझने में आसानी होती है और जिंदगी के खेल में गुजर जाती है और पता भी नहीं चलता, महसूस भी नहीं होता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्महात की तारीफ भी करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर फरमाया, आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो मुझे पता चल जाता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, वो कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुझसे राजी होती हो तो कहती हो रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, और जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो रब इब्राहिम की कसम। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रफीक हयात को राजी करने में किस तरह फरमाया करते थे। आप इसका दिल फरेब और काबिल तलकीद नमूना भी मुलाहजा फरमाएं कि अगर हजरत आयशा नाराज होती तो वो जब पानी पीने लगती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथों से प्याला लेते और जहां से सईदना सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुंह रखा होता वहां से ही पानी पीते। उनको दिखाकर उसी जगह मुंह रखकर पानी नोश फरमाते और उसी वक्त सारी नाराजगी खत्म हो जाती। एक दूसरे से मशवरा लें। खावंद को ये चाहिए कि हर काम में अपनी बीवी से मशवरा ले। बाल दफा होता यह है कि मर्द समझता है कि औरत नासमझ है, जाहिल है, बेवकूफ है, इसलिए वो अपनी बेगम को, शरीक हयात को मशवरा करना ही गवारा नहीं करता। हकीकत यह है कि औरत लाख बेवकूफ सही, पर वो अपने खावंद को कभी भी गलत मशवरा नहीं देगी। फर्ज करें अगर आपकी बीवी आपको हमेशा गलत मशवरा देती है, फिर भी इससे मशवरा जरूर लें। बात सिर्फ मशवरा लेने की नहीं, अमल तो आपने खुद करना है, वो अपनी मर्जी से करें।
मशवरा करने का फायदा ये होगा कि आपकी शरीक हयात ये समझती है, देखो मेरा खामन मुझे कितनी अहमियत देता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल हमारे सामने है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी काम करते अपने घर वालों से वो जरूर मशवरा लेते। दोस्ताना और रोमांटिक माहौल रखें, अपनी वाइफ के साथ रोमांटिक और दोस्ताना माहौल रखें। आप जितना इससे फ्रेंडली होंगे वो आपकी इतनी ही ज्यादा इज्जत करेगी। इसलिए कोशिश करें कि ज्यादा गुस्सा न करें, बात बात पर बीवी को मत डांटें। हर जायज डिमांड बीवी की पूरी करें। कोशिश करें कि बीवी की हर जायज डिमांड पूरी करें और इसे अपने माली हालात के बारे में सब कुछ सच सच बता दें, ताकि वो आपकी हैसियत के मुताबिक आपसे डिमांड रखे। अगर आपने अपनी बेगम से झूठ बोला हो और उसे अपनी हैसियत अपनी औकात से बढ़ के बताई हो तो आपके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। इसलिए जहां तक हो सके अपनी बीवी से सच बोलें और वो आपकी हैसियत के मुताबिक डिमांड करेगी। महीने में आप बाहर बीवी को जरूर लेके जाएं। खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी होता है कि आप महीने में कम से कम एक बार बीवी को कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाएं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसलिए आप किसी पार्क वगैरह या किसी होटल या तक किसी तारीखी जगह पर भी जा सकते हैं। बीवी के काम में हाथ बटाएं। अल्लाह पाक को हाथ से काम करने वाले को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर के कामों में अपनी ज़ौजात के साथ हाथ बटाते थे, किचन का काम करते थे। ज्यादातर खावंद ये समझते हैं कि अगर मैंने बीवी की किसी मामले में उसकी हेल्प कर दी तो मेरी क्या हक इज्जत रह जाएगी, या लोग कहेंगे देखो वो बेगम का गुलाम। ये सब कुछ हमारी सोच और हमारे माशरे की गलत रवायात हैं। सोचें, जो लड़की सिर्फ आपकी खातिर माँ बाप बहन भाई बल्कि सारी फैमिली छोड़कर आती है, क्या उसका इतना भी हक नहीं बनता कि आप उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दें, उसके काम में हाथ बटाएं? बेगम से कुछ ना छुपाएं। जिंदगी के बाज बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी से भी शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन बीवी का मामला इससे अलग होता है, क्योंकि बीवी एक ऐसी जात होती है जिसके साथ आपने पहाड़ जैसी जिंदगी गुजारनी होती है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी बीवी से कुछ न छुपाएं। अगर इससे कुछ छुपाएंगे तो जब भी आप उसको इस बात का पता चलेगा तो उसका आप पर एतमाद उठ जाएगा। वाइफ की फीलिंग्स को समझें। इंसान जज्बात का मजमुआ होता है। अगर इंसान में जज्बात निकाल दिए जाएं तो गोश्त का पहाड़ रह जाता है। जज्बात से खुशी, गमी, दुख, सुख का पता चलता है। इसीलिए एक अच्छे शौहर के लिए जरूरी है कि अपनी बीवी के जज्बात को समझे। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सईदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जज्बात को समझ करके ये अंदाजा लगा लेते कि वो कब नाराज होती हैं और कब राजी होती हैं, और जब नाराज होती हैं तब भी बता दिया और जब राजी होती हैं तब भी बता दिया, और उनकी नाराजगी को दूर कैसे करते ये भी मैंने आपको बता दिया। बीवी को वक़्त दें। आप बीवी की जरूरियात का पूरी करें
न सिर्फ जरूरियात पूरी करें बल्कि बीवी को खुश रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें। अक्सर आजकल के दौर में ज्यादातर मर्द ऐसे हैं कि रोजाना लड़ाई झगड़े का जो है वो बताते हैं कि हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं। जब उनसे मैं पूछता हूँ कि आप अपनी बीवी को टाइम कितना देते हैं, कहते हैं हम ऑफिस से घर आते हैं, घर आके फिर लैपटॉप पर बैठ जाते हैं और सारा दिन फेसबुक पे लगे रहते हैं। तो बीवी का जो टाइम है वो इतना ही टाइम है कि खाने के वक्त उनसे 2-4 बातें कर ली। तो आप ऐसा हरगिज न करें। शादी के बाज दफा ऐसा होता है कि हफ्तों तक बीवी को बात करने का मौका भी नहीं मिलता। फर्ज करें अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो दिन में एक आध बार घर में कॉल करके बीवी की खैरियत पूछ लें। इससे पूछे कुछ नहीं हो, इससे बेगम के दिल में आपके लिए प्यार और मोहब्बत बहुत ज्यादा गहरी होती चली जाएगी। गैर जरूरी बातों से परहेज करें। याद रखने की चीजें ये हैं कि अपनी बीवी पर मुकम्मल एतमाद करें। अपनी बीवी को एहसास दिलाएं कि वो आपके साथ महफूज है। बेगम को बराबरी का दर्जा दें। मोहब्बत का इजहार जरूर करें। महीने में कम से कम एक आध गिफ्ट जरूर दें और बाज़ दफा सरप्राइज दें। हफ्ते में कम से कम 2 बार बीवी के पास जरूर जाएं। जब बेगम साथ हो तो गैर जरूरी औरतों को हरगिज मत देखें। ये वो चंद चीजें हैं जो मैंने आपके सामने बताई हैं। अगर आप इन चीजों को ख्याल रखेंगे, अगर आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी सारी जिंदगी आसानी के साथ गुजरेगी। सारी जिंदगी आपकी बिल्कुल ठीक ठाक गुजरेगी। कभी भी लड़ाई झगड़े का मौका नहीं आएगा। बीवी को भी चाहिए कि वो भी शोहर की जरूरियात का और उसकी खुशी का ख्याल रखे, और एक शोहर को भी चाहिए कि वो भी बीवी की जरूरियात का और उसकी खुशी का जरूर ख्याल रखे। और आखिर में तमाम बहनों भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को दूसरी बहनों तक और भाइयों तक सदका जारिया की नीयत से जरूर शेयर करें। और इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।